Oh, okay. So today we are going to teach you the relations based on set theory principle. Okay. What I started yesterday, today I am going to finish it. Okay. Principles related to set theory. The properties related to set theory. You आपको करना है कर सकते हैं। एक मिनट। Okay. Topic is properties related to set theory. Okay. I told you about A union B yesterday. For two non-empty sets A and B, for two or three non-empty sets A, B, and C. A union B. Oh, P of A union B means what? A union B means probability of occurrence of at least one of A or B. Okay? And its value is P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay? It's related to class 11th, not class 12, but right now I'm going to tell you about it. Second one is P of A intersection B. Means what? Probability of occurrence of both A and B. Okay? You can say it as P of A plus P of B minus P of A union B. Okay? If events are mutually exclusive, then P of A intersection B equals to 0 means it becomes impossible event. Hence P of A union B equals to what? A union B equals to P of A plus P of B. Okay. Similarly, next term is
P of A dash. Oh, P of A dash means what? Probability of non-occurrence of A, okay, which is equals to 1 minus P of A. Probability of non-occurrence of A. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पे जाएं। हेलो हेलो हेलो। जी सर। नेक्स्ट पेज। ओके, सब लोग नहीं सुन रहे हो क्या जी? हेलो। चलिए, तो प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो आपको बताया गया है वो आपको बताया गया P of A minus B, P of A minus B, which is equals to P of A intersection B dash, and it means probability of occurrence of only A, not B, occurrence of only A, not B. Okay, means P of A minus B equals to P of A minus P of A intersection B. Okay. Similarly, P of A delta B. A delta B means what? Means P of A union B minus P of A intersection. Yeah, it is also written P of A minus B plus P of B minus. It means what? It means probability of occurrence of occurrence of exactly one of them, not A or B. Okay. मीन्स अगर एक मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया गया और कहा गया इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो एग्जैक्टली कोई एक ही बच्चा निकालेगा अगर दो बच्चों से पूछा जा रहा है तो। मतलब अगर ए निकाल दिया है तो बी कभी नहीं निकालेगा, और अगर बी निकाल दिया है तो फिर ए कभी नहीं निकालेगा। ठीक है बच्चे, इसका ये सेंस होता है। और आप इसको अगर एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंड करके आप इसको लिख सकते हो, एक्सपेंड करके इसको लिख सकते हो आप क्या, पी ऑफ ए माइनस बी है तो इसको आप लिखोगे पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फिर पी ऑफ बी माइनस ए है तो इसको आप क्या लिखोगे, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, मीन्स क्या हो गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस टू इंटू पी ऑफ बी इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चे, इसी तरह से डिमार्गन्स लॉ आपके बीच आया, डिमार्गन्स लॉ। इन्होंने कहा पी ऑफ ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू क्या होता है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन मीन्स probability of occurrence of neither A nor B, probability of occurrence of neither A nor B, means you can write it like
1 माइनस पी ऑफ ए। इसी का दूसरा पार्ट होता है, ये ए पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है बच्चे, इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हो, क्या 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए और बी। ठीक है, ठीक इसी तरह से नेक्स्ट रूल जो बताया गया इसमें, P of A union B union C means what? Equals to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection B intersection। ठीक है, मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of at least one of A, B or C, probability of occurrence of at least one of A, B और C। ठीक है बच्चे, अब इसी में अगर ये डिसजॉइंट सेट हो या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, पी ऑफ ए मीन बी मीन सी को आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट पेज चलें। सर सर हाँ, तुषार ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, आप एक बार देख लीजिए, उसमें कोई रिक्वेस्ट आ रहा होगा। तुषार ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, नहीं, उसका मैसेज आ रहा है। और सारे बच्चे तो ज्वाइन किए हुए हैं, 1 मिनट में देख लेता हूँ। और ज्वाइन तो एडमिन कराएंगे ना। हेलो, पता नहीं सर, उसका क्यों नहीं हो रहा। वो एडमिन करेंगे, मैं क्या बताऊं। हेलो। गुड हाँ, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग तुषार। क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्या? तुषार को इंटर नहीं हो पा रहा है वो। सर हो गया है वो। यस सर। अच्छा, आ गया। सर 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ। दस मेरे मिनट पास में नहीं आ रही थी, मे बी आपके साइड से ही होगी तुषार प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, अब क्लास लो। ओके सर। ओके। चलो ओके, चलो विशेष कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये है, नेक्स्ट पेज चलें। हेलो, यस सर। चलिए नेक्स्ट फिर से, जैसे 2 में आपने देखा कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, ए और बी, उसी तरह से 3 में भी होता है एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी। ठीक है, एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी और सी, एटलीस्ट टू ऑफ ए बी और सी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। तो उसमें तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख सकते हो, या वेन डायग्राम से अगर जा सकते हो तो जा सकते हो, कोई बात नहीं है। लिखना पड़ेगा कि लिखते हैं, कर लोगे। हेलो, यस सर। कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा। सर लिख दो। चलो आगे है। अब जैसे 2 का ये एग्जैक्टली वन ऑफ है, तो इसके लिए आपको कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कोई वैल्यू है, पी ऑफ
exactly one of A, B, and C occurs. One of A, B, C occurs. Okay, which is equals to what? P of A plus P of B plus P of B minus 2 into P of A intersection B. A intersection B minus 2 of A intersection C minus 2 of 2 into P of A intersection C minus 2 P of B intersection C plus 3 into P of A intersection B intersection। है बच्चे? बाकी ये फॉर्मूला याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन वेन डायग्राम से आप याद रख सकते हो। वेन डायग्राम बनाओगे, हालांकि आ जाता है, उस समय परेशानी होती है कि क्या होगा। ठीक इसी तरह से है पी ऑफ एग्जैक्टली, हम लोग को तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, लेकिन आप लोग को इसको क्वेश्चन कर करके याद होना चाहिए। एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी अकर। 12 में मुझे भी नहीं याद हुआ था ये तो बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेन डायग्राम से तो याद रख लेना। अगर इसमें 2 को एग्जैक्टली कोई 2 ही करेंगे तो उसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बच्चे और लास्ट है, इसी का नोट कर सकते हो पी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अगर, मतलब कम से कम 2, अधिक से अधिक तीनों के तीनों हो सकते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा कि एटलीस्ट 1 ऑफ, जो ए में बी में सी था, लेकिन जब एटलीस्ट 2 कहा जाएगा तो क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। पी ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अकर्स, अकर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी ऑफ ए, बस यही होगा, ऊपर वाला बस यहाँ 3 के जगह पर 2 कर दो बस। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 2 इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है जो आपको सेट थ्योरी के लिए हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब देखते हैं इसको यूज करते हुए किस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 11th का ही है, अब थोड़ा सा ही 11th का बचा है। इसी प्रॉपर्टीज पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 12 में आ जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट the probability that a person will get an person will get an electric contract is 2 by 5, is 2 by 5, okay? and the probability that and the probability that he will not get plumbing contract
contract is 4/7 each, 4/7. If the probability of getting, if the probability of getting at least one contract, at least one contract is 2/3, is 2/3. What is the probability that he will get both? What is the probability that he will get both? Sir, probability of getting at least one contract or probability of getting an electric and contract, ये तो सेम ही है. No. एटलीस्ट वन का मतलब हो गया क्या? कम से कम एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. और will get an electric contract, मीन्स ये भी तो एग्जैक्टली वही है. नहीं, एग्जैक्टली वन, दैट इज एग्जैक्टली वन एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वहां हो गया कि केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ है कि हो सकता है एक भी मिलेगा या हो सकता है दोनों मिल जाएगा, और से जुड़ा हुआ है, आइदर वन और बोथ. ये डिफरेंस है. ये बहुत इजी क्वेश्चन है. होगा बच्चों.
ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कैन आई सॉल्व? सर वेट हो गया बस। सर 17/105। गुड, सही है। देखो बच्चों, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ आपको देखो गिवन है, मान लो ए जो है वो है गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट and P of B equals to probability of getting plumbing contract, plumbing contract। तो देखो P of A equals to आपको गिवन है, वो है कितना 2/5। फिर देखो P of B डैश दे दिया, चूंकि है नॉट गेटिंग, P of B डैश इक्वल्स टू आपको दिया है, ये दे दिया है 4/7। आप इससे P of B निकाल सकते हो, P of B equals to 1 minus 4/7 3/7। Okay. Now, if the probability of getting at least one contract means P of A union B is also given here. P of A union B is 2/3. What is the probability that he will get both? Means we have to find P of A intersection B. Okay. And I told you the formula. P of A intersection B equals to P of A plus P of B minus P of A union B. Okay. So this is equals to what? 2/5 plus 3/7 minus 2/3. Now just solve it, you will get your answer. Equals to, what was the answer beta? Hello, इसका solution क्या सर है? 17/105। 105। ठीक है, next question please write down. It's a good question. The probability is that the student pass or student pass in maths, physics and chemistry, are M, N, P respectively. MPC respectively. M, P, C respectively. Okay. Of these subjects,
of his subjects the student has a the students the student has a 75% chance 75% chance of passing this subject. 75% chance of passing in at least one. 75% chance in passing in at least one chance of passing in at least one. A 50% chance a 50% chance of passing in at least one in at least two in at least two subjects. ठीक है बच्चे and a 40% chance a 40% chance of passing exactly two of passing in exactly two in exactly two. Find the value of find the value of p plus m plus c. ठीक है just right.
सर 135% आ रहा है। परसेंट में निकाल दिया। 135/100। ये तो हो ही नहीं सकता है ना। सर m प्लस p प्लस c को जोड़ेंगे तो वो तो 1 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ हो सकता है बड़ा, ये बात तो है। हाँ तीनों का सम तो बड़ा हो जाएगा। हाँ तो फिर क्या मेरा बोले आंसर? 135/100। 135/100 मतलब कैंसिल आउट होने पर 5 या 27/20। हाँ सही है आपका। गुड। देखो अभी जो आप लोग को बताया गया उसी से ये सॉल्व हो जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं था। फिर से क्वेश्चन आप पढ़ लो। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पास इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर एमपीसी रिस्पेक्टिवली। मतलब एम जो है प्रोबेबिलिटी दिया गया है, पी भी प्रोबेबिलिटी है, सी भी प्रोबेबिलिटी है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पास होने की। of these subjects the student has 75% chance of passing in at least one। इसका मतलब हुआ कि P of A यूनियन B यूनियन C आपको दे दिया है। That is 75% में 75/100 that is 3/4। फिर आपको बताया। फिर उसके बाद है 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू के बारे में बताया था। पी ऑफ एटलीस्ट टू ऑफ ए बी सी अकर्स। लास्ट जो पॉइंट लिखा है हमने तो क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस टू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फिर आपको ये दे दिया है 40% चांस ऑफ पासिंग एग्जैक्टली टू। ये भी आपको लिखाया था कि एक में -3 होगा तो एक में -2 होगा। इस तरह से आप याद भी रख सकते हो। तो वो सबको लिख लो, बस हो गया। उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। देखो देखो आंसर गिवन क्या है, ये इम्पोर्टेंट। गिवन है आपने ये तो देख लिया कि एम से हम कंसीडर कर लेते हैं मैथमेटिक्स, पी से कंसीडर कर लेते हैं फिजिक्स और सी से कंसीडर कर लेते हैं। मतलब क्या है, पी ऑफ एम इक्वल्स टू एम ही है। पी ऑफ पी इक्वल्स टू पी ही है और पी ऑफ सी इक्वल्स टू ये भी सी है, एम पी सी। और ये स्मॉल में है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका स्मॉल है। मतलब ये एम है, ये पी है और ठीक है बच्चे। तो क्या है, ये तो हो गया। अब इसके बाद आपको दे दिया पी ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी। एम यूनियन पी यूनियन सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये आपको दे दिया है 75%। 75/100 मीन्स 3/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। फिर आपको दिया है कि पी ऑफ 50% चांस ऑफ पासिंग एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू का मैं बताया हुआ हूँ।
P of at least 2 of ABC occur. ABC करते हैं MPC occur इक्वल्स टू क्या हो गया P of M intersection P plus P of P intersection C plus P of P intersection M minus 2 into P of A intersection B intersection P intersection M intersection C तो ये P है ये M। अब इसको आप सेकेंड इक्वेशन कह दो और इसकी वैल्यू क्या हो गई 50% है मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया। फिर थर्ड इक्वेशन है P of exactly 2 of MPC occur ठीक है और इसकी वैल्यू क्या है 40% में 40/100 सब क्या कर सकते हो 2/5 which is equals to what which is equals to P of M intersection P plus P of P intersection C plus P of C intersection M minus 3 of P of P intersection M intersection C बच्चे इसको आप इक्वेशन थर्ड कर अब अगर थर्ड में हम सेकंड को माइनस करते हैं जिससे सेकंड में सॉरी थर्ड को माइनस कर दो तब देखो क्या मिलेगा सब के सब कैंसिल हो जाएंगे और -2 और ये +3 मतलब क्या मिल जाएगा इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड इक्वेशन सेकंड माइनस थर्ड we get what P of A intersection B intersection C equals to आ जाएगा 1/2 minus 2/5 1/2 minus 2/5 ये तो 10 हो गया 5 minus 4 1/10 ठीक है बच्चे इसको इक्वेशन 4 कर दो अब क्या कीजिए इस सेकंड और जब मतलब P of A इंटरसेक्शन B तो मिल गया अब सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए जब ऐड करेंगे तो इससे आपको मिल जाएगा P of A इंटरसेक्शन B P of B इंटरसेक्शन C प्लस P of C इंटरसेक्शन A इसलिए कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो आपको मिल गया है 1/10 वो पुट कर देंगे P of A इंटरसेक्शन B P of B इंटरसेक्शन C और P of C इंटरसेक्शन A तीनों की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है चलिए यही करते हैं इक्वेशन नाउ इक्वेशन ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड चलो नेक्स्ट पेज करें बच्चे हेलो अब देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को जब ऐड करोगे तो ये सारे डबल डबल हो जाएंगे और ये 5 हो जाएंगे ठीक है और याद रखो P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है 1/10 ठीक है आगे बढ़ रहा हूँ मैं तो देखिए इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड नाउ क्या हो जाएगा 2 of P of M intersection P plus probability of P intersection C plus probability of C intersection M okay minus 5 into P of A intersection B intersection C कुछ तो क्या हो जाएगा इन दोनों का आपको ऐड भी करना है एक की वैल्यू थी 1/2 और दूसरे की वैल्यू थी 40/100 था तो 2/5
2/5 और इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो बताओ क्या हो जाएगा। हेंस P of M intersection P plus P of P intersection C plus P of C intersection M minus 5 into 1/10, ओके, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9/10, ओके। तो देखो डायरेक्ट आप लिख लो, इसको हम इधर इस तरफ भेज देते हैं, ये हो गया 5/10, चलो लिख लेता हूँ। Hence P of M intersection P plus P of P intersection C plus P of C intersection M equals to 9/10 plus 5/10 equals to 14/10, that is equals to 7/5, ठीक है बच्चे। अब क्या है कि ये, अब इसमें आप क्या करो, अब इक्वेशन फर्स्ट में ये सारे वैल्यू को पुट कर दो। नाउ P of M union P union C इक्वल्स टू क्या होता है, P of M प्लस P of P प्लस P of C माइनस कॉमन ले लो, ये मिल जाएगा P of M इंटरसेक्शन P प्लस P of P इंटरसेक्शन C प्लस P of C इंटरसेक्शन M, ठीक है बच्चे। और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, ठीक है बच्चे। अब इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 75% का, तो 3/4 ये हो गया 3/4, और इसकी वैल्यू है M प्लस P प्लस C माइनस ये क्या हो गया 7/5 प्लस ये क्या निकला था 1/10 1/10 हो गया। तो M प्लस P प्लस C क्या हो गया, M प्लस P प्लस C इक्वल्स टू हो गया 3/4 प्लस 7/5 माइनस 1/10, और देखो एलसीएम को हो गया 20, 4 5 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 7 4 जा 28 माइनस 10 2 जा 15 38 5 43 41/20 आ रहा है जी, गलत हुआ है क्या। 9/10 प्लस 5/10 तो अच्छा 2 से तो डिवाइड किए ही नहीं, ये 2 भी तो है बच्चे, देखो ये 2 को तो डिवाइड करना भूल ही गए, ये हो जाएगा 1/2, मतलब ये आ जाएगा 7/10, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ गया ये 7/10, तब भी ये 20 ही होगा, बस थोड़ा सा अंतर हो गया। 5 3 जा 15, 10 2 जा 7 2 जा 14 ही हो जाएगा, ये आपका 14 हो गया। और सब ठीक है। अच्छा, प्लस 14 क्या हो गया 29 माइनस 2 27/2,
ठीक है बच्चे। ये आंसर आपका आ रहा है। बच्चे आप लोगों को समझ में आई बात की नहीं? हेलो हेलो। यस सर। अरे आप लोग को आवाज जा रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, और सारे बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं क्या? अदर कोई बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं आज? हेलो। यस सर। सबको आवाज जा रही है तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? अरे मेरा कान ठीक ही रहेगा, आप चिंता मत करो। आप जैसे बोल रहे तो ऐसे ही बात करते रहो। यस सर। ठीक है, आपको कहीं डाउट हो तो जरूर पूछिए। ओके सर। चलिए, तो ये था आपका, आपने देख लिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन। एक सिंबल वाइज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन है, let A and B with two events. Let A and B with two events. Two events defined on a sample space. Defined on a sample space. Sample space. Given that. Given that P of A equals to 0.4 and P of B equals to 0.8. That's 0. वही होगी। And P of A dash intersection B dash is equals to 0.10. Find P of A dash union B dash। दूसरा P of A dash union B dash union A intersection B। अच्छा, निकालिए। फर्स्ट वाले का 0.7, हम्म, फर्स्ट पार्ट का 0.7। चाहिए।
गया बच्चों? वेट सर। सर सेकंड वाले का भी 0.7 है। बिल्कुल सही, सही है। बच्चे ध्यान देना, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश थ्रू डिमार्गन्स थ्योरम, सॉरी डिमार्गन्स लॉ। और इसको फिर से आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको मिल जाता है तो आपको ये मिल जाएगा। अब जो गिवन है इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही गिवन है, पी ऑफ ए डैश नहीं, गिवन दैट, गिवन है पी ऑफ ए डैश intersection b dash that is equals to p of a union b dash, okay, which can be written as 1 minus p of a union, okay, and now break it, just p of a plus p of b minus p of a intersection, okay. Now put the value of p of a and p of b dash, p of b and p of a and b dash, it's 0.1 equals to 1 minus p of a means what? 0.4 minus 0.8 plus p of a intersection. Okay, so value is what? Minus 0.8 minus 0.4 minus 1.2. Okay, 1 minus 1.2 means what? Means p of a intersection b is 0.3 minus 0.2 plus 0.1 means 0.3. So p of a intersection b dash is what? 1 minus 0.3, that is equal to 0. अब जैसे b पार्ट को आप गौर कीजिए, इसका वेन डायग्राम बनाइए तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। बट मान लो ये a डैश यूनियन b डैश का मतलब क्या हुआ? a इंटरसेक्शन b डैश मीन्स नॉट a इंटरसेक्शन b। तब देखो अगर दो सेट लिया गया है कि नहीं, ये a है और ये b है, तो नॉट a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ? इस पार्ट को छोड़ के सारा का सारा हो जाएगा इसका। और दूसरा पार्ट है a इंटरसेक्शन b डैश मीन्स ओनली a नॉट b, मीन्स ये पार्ट हो गया। ये पार्ट अगर यूनियन ले रहे हैं तो ये पार्ट तो ऑलरेडी इसका पार्ट है कि नहीं? ये ओनली ए पार्ट जो है इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो इट्स यूनियन विल बी इक्वल्स टू p of a dash union b dash, okay, which is equals to also 0.7. अच्छी बात समझ में आई या नहीं? हेलो सर हाँ बोलिए। सेकंड वाला बताना कैसे निकाला आपने, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब हुआ a माइनस b, और a माइनस सर b का मतलब मैं बताया हूँ ओनली a नॉट b, तो ओनली a का जो पोर्शन आएगा वो आपका यही आएगा ना, है कि नहीं? ये पोर्शन आएगा आपका, ये ओनली a का आएगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो देख रहे हो a डैश यूनियन b डैश, इसका मतलब हुआ a इंटरसेक्शन b डैश, मतलब नॉट a इंटरसेक्शन b, मतलब इस पोर्शन को छोड़ के सारा पोर्शन हो जाएगा ये। तो बताओ जब यूनियन लेंगे ये तो डबल टाइम्स हो गया, तो यही बचेगा ना a डैश यूनियन b डैश, नहीं बचेगा? एक सेकंड सर। हाँ आप कॉपी पर करो तो आपको पता चल जाएगा। ये सेट A है, ये सेट B है,
अच्छा, यूनियन वाले पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी डैश ही आ जाएगा। हाँ, हाँ 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 तो 0.7 आएगा। जी, क्योंकि ये भी ए डैश यूनियन बी डैश हो गया, तो इसका भी आंसर 0.7 होगा। ठीक है, यस सर। क्लियर। यस सर। तो ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसी में बताया गया है, थोड़ा सा बताया गया है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट फेवर फॉर एन इवेंट। ठीक है, उसको थोड़ा सा मैं बता दूँ। नेक्स्ट पेज पर जाऊँ? सर वेट सर, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक सेकंड सर बस। नेक्स्ट पेज सर। बताया गया आपको odds in favor and odds against favor। ठीक है, favor of an event। तो क्या है, जैसा दिख रहा है, जैसा आप इंग्लिश में इसको समझते हो, ठीक लगभग उसी तरह से ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी है। मतलब मान लो कोई डाई को आप थ्रो करते हो, तो आपके मन में कुछ ना कुछ रहती है कि ये आ जाए, ये आ जाता तो सही था, ये आ जाता तो सही था। तो जो आप चाह रहे हो अगर वो आ रहा है, दैट इज ऑड्स इन फेवर। नहीं कहते हो आप मेरे फेवर में, मेरा फेवर करो, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो चाहते हो वही उससे भी चाहते हो, है कि नहीं? यही चीज यहाँ है। तो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट फेवर, मतलब आपके अगेंस्ट अगर हो रहा है, आप जो चाह रहे हो उसके अगेंस्ट अगर हो रहा है, इसको हम ऑड्स अगेंस्ट फेवर कहते हैं। कोई सैंपल स्पेस जो है हमेशा क्या होता है, वो वेट करेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस अगर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ई और ई डैश में। ठीक है, मीन्स क्या है, ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट एंड ई डैश इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है, अकरेंस ऑफ यस इवेंट सर। एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट, तो इसी में ये डिवाइड होता है। और सैंपल स्पेस जो है इसी का सम है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो मान लो अगर ऑड्स इन फेवर को आप ई कहते हो और ऑड्स अगेंस्ट फेवर को आप ई डैश के रूप में देखते हो, तो odds in favor, मैं पहले तो कंसीडर करो, लेट S be the sample space, let S be the sample space, the sample space M, M N में ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। M be an event, M be an event and M dash या N denote the and denotes the complement of event, complement of event, then A odds in favor of event, odds इन, अब यहाँ से ये दोनों चीज जब हो गया तो आप यहाँ से कर सकते हो, हेंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऑड्स इन फेवर, फेवर ऑफ
event m is what? That is number of m by number of n, number of m by number of n, ठीक है। और इसको अगर नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दो, ये क्या बन जाएगा? पी ऑफ एम, ठीक है। मतलब क्या हो गया? अब पी ऑफ एम तो आपने एम मान लिया है, अगर आपके हिसाब से हो रहा है तो उसको एम कह रहे हो, और ये क्या हो गया? पी ऑफ एन हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट एम बाय नंबर ऑफ केसेस, मतलब नंबर ऑफ एस से आप डिवाइड कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो क्या हो गया? पी ऑफ एम बाय पी ऑफ एन। मतलब इसी को अगर आप दूसरे शब्दों में कहो, पी ऑफ ई, अगर अकरेंस ऑफ इवेंट को ई कहते हैं, पी ऑफ ई बाय पी ऑफ ई डैश, ठीक है बच्चे। और यही क्या होगा? ऑड्स अगेंस्ट फेवर हो जाएगा, odds against favor is number of n by number of m, ठीक है बच्चे। that is p of n by p of m, ओके। या इसी चीज को आप कर सकते हो p of e dash by p of e, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये कर सकते हो, उसको उनको बोलो अंदर आके बैठे, मैं तो बल्ब जला देना, ठीक है बच्चे। इसी को अगर सैंपल स्पेस के टर्म में लिया जाए तो आप ऐसे ही लेते हो, m बाय n कर सकते हो या n बाय m कर सकते हो। अब जैसे इस पर आपको क्वेश्चन जो देगा वो कैसा देगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको देगा कि मान लो p ऑफ e जो है, जो अकरेंस ऑफ इवेंट्स है, हमेशा ये रेशियो में ही देगा, p ऑफ e 2/7 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड्स इन फेवर जो है e का, वो 2/फेवर है, तो ऑड्स अगेंस्ट e क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा, है कि नहीं? अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ e इज 2/5, देन ऑड्स अगेंस्ट e क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? सर मतलब क्या होता है इस ऑड्स का? देखो, मैं आपको अभी लॉजिकली बताया कि मान लो कोई डाई आप थ्रो कर रहे हो, तो आपके मन Yes. में एक इवन नंबर आ जाए, यस तो अगर वो इवन नंबर आ गया तो वो क्या क्या आपके फेवर में हो गया, यस ठीक है। अगर ऑड्स इन फेवर की बात हो गई तो मतलब क्या हो गया? ये तो 50-50 चांसेस है। अगर यस इवन आया तो क्या होगा? ऑड भी उतना ही आएगा। यस सर। ये 1:1 का रेशियो हो गया, है कि नहीं? अच्छा 1:1 का रेशियो जो हुआ, ये ऑड्स इन फेवर भी हो सकता है, ऑड्स अगेंस्ट फेवर। अगर मान लो ऑड आता है तो भी तो 1:1 ही रहा, यस सर। है कि नहीं? अब इसी में अगर थोड़ा सा हम ये कह दें कि टू गेट इन प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर में भी तो शायद वही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। डिविजिबल बाय 3 ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। ऑड्स इन फेवर जो है डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। तो बताओ, अगर 3 या 6 आया तो ऑड्स इन फेवर हुआ, तो बचा कितना? 4 ही तो बचा। यस सर। तो क्या हो गया? 2:4 जो हो गया, मीन्स 1:2 हो गया, वो ऑड्स इन फेवर, अच्छा ठीक है। और ऑड्स अगेंस्ट फेवर जब कहा जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 ये 2 नहीं आएगा और कुछ भी आ सकता है कि नहीं? तो सर इस ऑड्स का यूज कहाँ पर है? ऑड्स को देखो, जैसे अभी सट्टेबाजी होती है ना, सट्टेबाजी क्या है? जो आप गैम्बलिंग सुनते हो, यस है कि नहीं, क्रिकेट में ही या अदर फील्ड में, यहाँ क्या है? प्रोबेबिलिटी ही तो है कि भैया इस बॉल पर 6 लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बॉल पर विकेट जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या ऑस्ट्रेलिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि नहीं? यस ये सर। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट फेवर में ही काउंट होता है, रेशियो अच्छा वाइज ही बताया जाता है ये। अच्छा हाँ, अब चूंकि क्या है, प्रोबेबिलिटी तो कंप्लीट है, फोरकास्टिंग है,
है कि नहीं? यस इसलिए आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। सर। तो इसका सवाल किस तरीके से पूछेगा? चलिए, हाँ, सवाल यही आएगा कि अगर मान लो पी ऑफ ई अगर 2/7 दिया है तो बताइए ऑड्स इन फेवर क्या होगा, ऑड्स अगेंस्ट फेवर क्या होगा। डायरेक्ट आएगा सर? नहीं, डायरेक्ट मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। डायरेक्ट मतलब इसको कहा, आपने पूछा कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हाँ तो जी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो अगर दे दिया लेट गिवन दैट पी ऑफ ई इक्वल्स टू है 2/7, है कि नहीं? पी ऑफ ई इक्वल्स टू क्या है, सॉरी थोड़ा सा ये क्या हो रहा है। हाँ, तो पी ऑफ ई इक्वल्स टू आपको दे दिया है 2/7। सपोज ये 7 जो है इसका मतलब है ये सैंपल स्पेस है, और ये 2 जो है जो आप चाह रहे हैं वो है कि नहीं? मान लो आपने कहा कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी, तब क्या कहोगे 3/6, या मान लो डिविजिबल बाय 3 आने की प्रोबेबिलिटी तो क्या कहोगे 2/6, है कि नहीं? पी ऑफ ई दे दिया तो बताओ इससे आप निकालोगे ऑड्स, इसका मतलब है कि m प्लस n इक्वल टू आपको 7 दे दिया है, ठीक है? Hence m equals to 2 and m plus n equals to 7 because m plus n is equals to sample space, ठीक है? तो बताओ n equals to क्या हो जाएगा, n equals to आपका क्या हो जाएगा 7 माइनस 5। 5 हो जाएगा। इसलिए ऑड्स अगेंस्ट फेवर, अगर ऑड्स इन फेवर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ऑड्स बाय फाइव 2/5 हो जाएगा, ऑड्स इन फेवर हो जाएगा 2/5, और ऑड्स अगेंस्ट फेवर क्या हो जाएगा 5/2। बस। समझे बच्चे? हेलो, यस सर। चलिए नेक्स्ट पे चलें। यस सर। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, है इजी है, ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट फेवर हार्ड नहीं है। सर इजी तो है, बस वही था कि कैसे इसका यूज करेंगे? क्वेश्चन जो आएगा उसमें यूज कैसे करेंगे इसको? नहीं, कभी कभी क्या होगा कि आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं देके ऑड्स इन फेवर के टर्म में दे दिया, आप उससे अच्छा प्रोबेबिलिटी तो अच्छा निकाल अच्छा। सकते हो। यस सर। इनडायरेक्ट में कुछ भी कर देता है कभी कभी, क्या अक्सर करता है वही। और ये सब जेई मेन में ही पूछेगा, जेई एडवांस में तो पूछेगा नहीं, तो वहां तो और घुमा सकता है। देखो क्वेश्चन है, इफ 10 objects 10 objects are are distributed at random among 10 person among 10 person, ठीक है? Then find the probability that 10
find the probability that at least one of them at least one of them will not get anything. जल्दी से सॉल्व करो। Sir, 10 raised to power 10 minus 1 divided by 10 raised to power 10. Sir, सर अभी दूर है। सर 10 से 1/10 की पावर 10। सही बोली, सही में उस समय तो हॉट टॉक हो गया था। हेलो, हो गया बच्चों? सर 10 से 1/10 की पावर 10। फिर से बोलना। 10 से 1/10 की पावर 10। Sir, 10 की power 10 minus 10 factorial whole divided by 10 की power 10. गुड, बिल्कुल सही है। देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या है कि 10 ऑब्जेक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम अमंग 10 पर्सन्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट गेट एनीथिंग। तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। 10 ऑब्जेक्ट को आप 10 टू द पावर 10 वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अमंग 10 पर्सन्स में, है कि नहीं। फिर उसके बाद है कि अगर मान लो एग्जैक्टली एक एक ऑब्जेक्ट भी सबको मिलता है तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल 10 हो गया ये। अब मुझे निकालना है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट किसी को नहीं मिलना चाहिए।
हम क्या करेंगे कि कम से कम मतलब टोटल में से एक ऑब्जेक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। यहाँ पर अगर आप पी ऑफ ई की बात करोगे, मेरा मतलब समझ रहे हो बच्चों? यहाँ देखो नंबर ऑफ एस तो डायरेक्ट क्लियर है, नंबर ऑफ एस इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 टू द पावर 10, ओके। और नंबर ऑफ ई जब निकालना है तो मतलब क्या हो गया, आप क्या करो कि द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और आप एक को भी 10 दे सकते हो, किसी को भी 10 के 10 ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर निकाल लेते हैं द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग वन ऑब्जेक्ट ईच, देन क्या होगा, ईच इक्वल टू हो जाएगा सीधा 10 की 10, मतलब 10 प्लेसेज हैं और एक एक सब पर मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं हुआ, ये हो गया फैक्टोरियल 10, है कि नहीं। तब क्या है कि इसके थ्रू आपने एक एक ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सबको दे दिया। तो अगर हम इसमें से टोटल में से इसको माइनस करते हैं तो क्या मुझे मिलेगा नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलना हो गया, नॉट गेटिंग एनीथिंग, ठीक है। इसीलिए आप कह सकते हो हेंस नंबर ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 माइनस फैक्टोरियल 10 है, हेंस पी ऑफ ई इक्वल टू हो गया आपका 10 टू द पावर 10 माइनस फैक्टोरियल 10। या आप इसको सीधा 1 माइनस भी निकाल सकते थे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, 10 बाई क्या हो जाएगा, और नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी उसी से क्लियर हो जाएगी। मान लो सर हाँ सर बोलिए। सर अगर हम इसमें एट मोस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 से माइनस कर दें तो आंसर नहीं आ जाएगा हमारा? एट मोस्ट में समझते हो, नहीं भी होगा 1 भी होगा, दोनों केस हो जाएगा। हाँ जी, तो सर इसमें भी फिर है। दोनों को कैसे निकाल लोगे आप, 1 का तो चलो निकाल लिए, और नहीं का कैसे निकालोगे? 0 वो होगी भी ना, नहीं निकाल भी रहे तो? हैं? नहीं ऐसा थोड़ी होगा। तब भी तो देखो, अगर आप देखोगे तो इसी में माइनस करोगे ना, नहीं का तो यहाँ क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि कम से कम एक ऑब्जेक्ट किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये है। हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, वो निकाल के माइनस कर दिया। सर एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, उसका 10 पे 10 आया हमारा। हाँ जी, 10 पे 10 ही तो फैक्टोरियल 10 है। अच्छा, हाँ जी, और उसको टोटल में से माइनस क्यों किया? माइनस कर दिए। माइनस इसलिए किए कि एक ऑब्जेक्ट किसी को नहीं मिलेगा, ये आपने क्या निकाला, एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट शुड गेट एवरीवन, है कि नहीं। बट जब हम यस माइनस सर। कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट किसी को नहीं मिला। अच्छा, हाँ, वही तो पी ऑफ ई हो गया, ओके सर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। लिखो, तो नेक्स्ट पेज पे लिखिए। An integer is an integer is chosen at random and and squared
find the probability that find the probability that the last digit of the square is the last digit of probability that the last digit of the square is 1 or 5. 1 or 5. Please find it. तो पक्का ये डिफाइंड है प्रोबेबिलिटी? हाँ, इसका आंसर 1/5 आ रहा है, निकल जाएगा। निकल तो जाएगा, लेकिन इंटीजर लिखा हुआ है, सैंपल स्पेस के इवेंट्स कितने होंगे फिर? इवेंट्स बहुत होंगे, दूसरे तरह से सोचना होगा। अब सभी इंटीजर्स को कंसीडर नहीं करना होगा, सिर्फ 10 टाइप के इंटीजर्स होंगे, क्योंकि 10 नंबर्स पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यूनिट डिजिट में आ सकते हैं। और जिसका यूनिट डिजिट 9 हो या 5 हो, उसी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 या 5 होता है। 1 के यूनिट डिजिट भी 1 होता है। हाँ, तो फिर 3/10 हो गया। ट्वाइस होगा ना उसका, 3/5 होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी तो वही डिजिट्स होंगे। नहीं, हम सिर्फ नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि साइन कुछ भी हो, स्क्वायर होने पे तो पॉजिटिव ही होता है। तो मतलब सिर्फ नंबर के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना है, मैग्नीट्यूड के वे यूनिट डिजिट को कंसीडर करना है, कितने टाइप पॉसिबल है। वही मेरे को कंफ्यूजन है कि इसमें 2 टाइम्स कर सकते हैं। हेलो, यस सर। ओके बच्चों, सॉरी 3/10 आ रहा है। सर 3/10 आएगा या फिर 3/5 आएगा? नहीं जी, 3/10 आना चाहिए। 3/10 सर नेगेटिव वालों को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे? क्योंकि इंटीजर नहीं, नेगेटिव को क्यों लेंगे? स्क्वायर तो उनका भी 1 ही है, पॉजिटिव ही आएगा। बात सही है, लेकिन इंटीजर जो माना जाता है वो 0 से 9 को माना जाता है, ठीक है। जो डिफरेंट इंटीजर माने जाते हैं वो 0 से 9 को माना जाता है।
फिर अब ठीक है सर। नेगेटिव इंटीजर कहोगे, ये कहोगे, वो अलग केस हो जाता है। सर ठीक है वो तो ओके बच्चे। सर। वो तो अब इसमें स्क्वायर के हाँ केस में हुआ, कभी भी हाँ ऑड पावर में रेज करेंगे तो फिर तो नेगेटिव इंटीजर को कंसीडर करना होगा, जैसे क्यूब करेंगे या फिर रेज टू द पावर 5 करेंगे तब तो नेगेटिव इंटीजर कंसीडर होगा। नहीं, बात अगर वो आपकी सही बोलेगा है, कि लेकिन इन जनरल जो है एज ए इंटीजर माना जाता है। अगर सिंगल डिजिट इंटीजर है तो वो 0 से 9 माना जाता है। नहीं सर, अगर नेगेटिव भी कंसिडर करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि उसमें टोटल तो 20 हो जाएंगे ना फिर। 6/20 3/10। 20, हाँ बात तो वही है, लेकिन मैं एक जो जनरल चीजें बोला वो यही बोला कि इंटीजर 0 से 9 को माना जाता है। सर वही मैं कंफ्यूज था कि इंटीजर, हम्म? इसमें इंटीजर का सेट डिफाइंड है या नहीं। नहीं, यहाँ कुछ नहीं कहा है, यहाँ तो सिर्फ यही जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ वही मैं बता रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ गया समझ, मेरे को बता दिया सायन ने। चलो, तो इसको करने की जरूरत है? नहीं सर। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम 12 का चलेंगे। आज तक तो 11th ही हुआ, यही सारा चीज 11th क्लास में बताया हुआ था। और जेई मेन में जो क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, कंडीशनल या बाइस थ्योरम, ये सब बेस्ड क्वेश्चन एक रैंडम पूछता है। ठीक है, ओके सर। थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन को जो देखने में तो लगता है छोटा, लेकिन बड़ा दिमागी होता है, जिसमें पीएनसी को यूज करके देता है, इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा आएगा। ओके सर। तो आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करना, आपके पास मॉड्यूल है ही, उसको करना और फिर हम लोग देखते हैं कल के। ओके सर। ओके सर। ओके बेटा, गुड थैंक इवनिंग यू ऑल सर। ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।